السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ترکی کے صدر کی جانب سے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز کے 5ویں ایڈیشن میں شرکت کے لیے دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ قطر کو انٹرنیشنل یونین فار دی پروٹیکشن آف لٹریری اینڈ آرٹسٹک ورکس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ کویت میں شیخ احمد نواف الصباح کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے۔ اور مقبوضہ فلسطینی شہر نابلس پر اسرائیلی جارحیت میں 2 فلسطینی شہید اور دیگر 20 زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو ترکی کے صدر جناب رجب طیب ایردوان کی جانب سے اسلامک سولیڈیریٹی گیمز کے 5ویں ایڈیشن میں شرکت کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے۔ یہ گیمز قونیہ شہر میں 9 سے 18 اگست تک کھیلے جائیں گے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ترکی میں نوجوانوں کے امور اور کھیل کے وزیر جناب ڈاکٹر محمد قصاب اوغلو سے ایک ملاقات کے دوران یہ دعوت نامہ وصول کیا۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو بالخصوص نوجوانوں کے امور اور کھیل کے شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو رومانیہ کے وزیر خارجہ جناب بوغدان اورسکو کی جانب سے 2 طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں کے بارے میں ایک تحریری پیغام موصول ہوا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران دوحہ میں رومانیہ کے سفیر جناب نیکوسور دینیل تھینسی نے یہ پیغام ان کے حوالے کیا۔ عرب لیگ میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سالم مبارک الشافی نے روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لیوروف کے ساتھ عرب لیگ کے مندوبین کی سطح کے اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی۔ یہ اجلاس عرب لیگ کے ہیڈ کوارٹرز قاہرہ میں بلایا گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے عرب لیگ کونسل میں ایک بیان پڑھ کر سنایا، جس میں یوکرین کے بحران کے حوالے سے عرب لیگ کے ممبر ملکوں کے منصفانہ اور متوازن موقف کی تعریف کی گئی ہے۔ قطر عرب لیگ کی سماجی اور اقتصادی کونسل کی ذیلی کمیٹی برائے رابطہ کاری اور فالو اپ کے 31ویں سیشن کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ اجلاس مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہو رہے ہیں اور 5 دنوں تک جاری رہیں گے۔ عالمی سطح پر قطر کو ملنے والی تازہ ترین کامیابی یہ ہے کہ قطر کو فکری حقوق کی ملکیت کی عالمی تنظیم WIPO کے تابع برن یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی برائے تحفظ ادب اور آرٹ کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ قطر کا انتخاب WIPO کے ممبر ملکوں کی ایسوسی ایشنز کے 63ویں سیشن کے اجلاسوں کے دوران عمل میں آیا۔ تمام ممبران نے متفقہ طور پر WTO میں قطری دفتر کے قائم مقام ڈائریکٹر جناب احمد عیسیٰ السلیطی کو آئندہ 2 سال کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا صدر منتخب کر لیا، جبکہ امریکہ اور فن لینڈ کے نمائندوں کو نائب صدور کے عہدے کے لیے چنا گیا۔ قطری انسانی حقوق کمیٹی کی صدر اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عرب نیٹ ورک کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے الجزائر کی الامہ کونسل کے اسپیکر جناب صالح وجیل کے ساتھ ملاقات کی، جس کے بعد بیان دیتے ہوئے انہوں نے الجزائر کی حکومت کی جانب سے قانون کی رٹ قائم کرنے کے لیے کی جا رہی کوششوں کی تعریف کی۔ قطری انسانی حقوق کمیٹی اور الجزائر کی انسانی حقوق کونسل نے مشترکہ تعاون کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے۔ قطر کی جانب سے کمیٹی کی صدر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ اور الجزائر کی جانب سے کونسل کے صدر جناب عبد المجید زعلانی نے مفاہمت کی اس یادداشت پر دستخط کیے۔
कुवैत में जारी करदा एक अमीरी हुक्मनामे की रूह से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख अहमद नवाफ अल अहमद अस्सबाह को मुल्क का नया वजीर आजम नामजद किया गया है। वो शेख सबाह अल खालिद अल हमद अस्सबाह की क़यादत वाली मुस्ताफ़ी हुकूमत की जगह लेंगे। अमीरी फरमान में शेख अहमद नवाफ अस्सबाह को नई काबीना के मेंबरान को नामजद करने और उनकी फहरिस्त को वलीअहद शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अस्सबाह के सामने पेश करने का हुक्म दिया गया है ताकि वो उनकी तकर्रुरी का फरमान जारी कर सकें। मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन से कशीदगी की इत्तलात आ रही हैं, जहां कल पुराने शहर नाबलुस पर इसराइली फौज की जारहियत के दौरान झड़पों में 2 फ़लस्तीनी शहरी शहीद और दीगर तकरीबन 20 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब यहूदी आबादकार इसराइली काबिज पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा के कंपाउंड की मुसलसल बेहुरमती कर रहे हैं और वहां जबरदस्ती दाखिल हो रहे हैं। इसी दौरान में इसराइली जेलों में कैद दर्जनों फ़लस्तीनियों ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उधर फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद इश्तिया ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन को हल किए बगैर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम नहीं कायम हो सकता। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो 2 रियासती हल की हिफाजत के लिए संजीदा इक़दामात करे। लीबिया के शहर मिसराता को दारुल हुकूमत तराबलुस से मिलाने वाले साहिली हाईवे के करीब बाहम लड़ने वाले ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह झड़पों की इत्तलात हैं। इससे कबल होने वाली खुरेज लड़ाई में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए, जिसके बाद दारुल हुकूमत तराबलुस गर्चे पुरसुकून है लेकिन मोहतात और चौकन्ना है। ट्यूनीशिया में नए आईनी ड्राफ्ट पर आज रेफरेंडम हो रहा है, जिसमें अवाम को हां या ना कहने का इख्तियार दिया जा रहा है। इससे कबल मुल्क के दारुल हुकूमत में इस रेफरेंडम के खिलाफ जबरदस्त अवामी मुजाहरे किए गए, जिनके दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम भी हुआ। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। फ्रांस के सदर जनाब इमानुएल मैक्रों ने एक टेलीफोन कॉल के दौरान ईरान के सदर जनाब इब्राहिम रईसी के साथ एटमी मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि इस मुआहदे में दोबारा रूह फूंकी जा सकती है बशर्ते कि ऐसा जल्द किया जाए, जबकि ईरानी सदर का कहना है कि ये मुआहदा गारंटीज और वादों पर मुनहसिर है। रूस यूक्रेन जंग का 6वां महीना शुरू हो चुका है और अब तक ऐसे इशारे नहीं मिले कि लड़ाई की शिद्दत में कमी आ रही है। यूक्रेन की फौज ने कहा है कि रूस ने मुल्क के शिमाल, जुनूब और मशरिक में वाक़ई इलाकों पर गोलाबारी की है। यूक्रेन का मजीद कहना है कि रूसी ऑपरेशंस मशरकी दोनबास खित्ते में वाक़ई बाखमूत नामी इलाके पर हमले का रास्ता हमवार करने के लिए हैं। इसी दौरान में बरतानिया के खुफिया इदारे ने ऐलान किया है कि रूस उसके जेर कब्जा इलाकों में रेफरेंडम कराने की मंसूबाबंदी कर रहा है ताकि यूक्रेन से उनकी अलहदगी को मजबूत किया जा सके। दूसरी जानिब यूक्रेन की बंदरगाह ओडिशा पर रूस के मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन ब्लैक सी पर वाक़ बंदरगाहों से अनाज की बरामदात दोबारा शुरू करने की कोशिशें कर रहा है। यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले की मजम्मत करते हुए उसको हैवानियत से ताबीर किया। उधर रूसी वज़ीर ख़ारजा जनाब सेर्गेई लैवरोव ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा जनाब सामिह शुक्री के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मुल्क ग़िज़ाई अशिया की सप्लाई के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, चाहे उसके खिलाफ लगाई गई पाबंदियां उठाई जाएं या न उठाई जाएं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग के बड़े पैमाने पर फैल जाने के बाद हुकूमत ने हजारों शहरियों को इलाके से निकाल लिया है। वाज़ेह है कि लाखों अमरीकी शहरी शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे हैं और अमरीकी महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड गर्मी की तवक्कुआत जाहिर की हैं। उधर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी शदीद गर्मी और हवाओं की वजह से कई मकामात पर आग लग गई,
जबकि यूनान में फायर फाइटर्स जंगलों में लगने वाली आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि बिलखुसूस मशरकी यूरोप में शदीद गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों से शहरियों को निकाला जा रहा है। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार किए गए लुसेल इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम में जुमेरात 11 अगस्त को अल अरबी और अल रैयान की टीमों के दरमियान होने वाले मैच को देखने के लिए 20,000 शायकीन के दाखिले की इजाजत दी गई है। इस स्टेडियम में 80,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है और इसके बाकायदा इफ्तिताह की तारीख का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों के दौरान किया जाएगा। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सुप्रीम कमेटी फॉर लेगेसी एंड डिलीवरी ने ऐलान किया है कि फुटबॉल के इस आलमी मेले में रजाकार की हैसियत से शामिल होने के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता रह गया है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो वॉलंटियर बनने के लिए qatar2022.qa वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कतर के रैली ड्राइवर नासिर सालेह अल अतिया ने बाहा स्पेन एरागन रैली जीतकर 5वीं बार ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस चैंपियनशिप में कुल 92 गाड़ियां शरीक थीं। वाज़ेह रहे कि नासिर अल अतिया डाकार रैली 4 मरतबा जीत चुके हैं। और भारत और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल भारत ने जीतकर सीरीज में 2-0 की हतमी बढ़तरी हासिल कर ली है। पहले खेलते हुए मेजबान वेस्टइंडीज ने 6 विकेटों पर 311 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर टारगेट पूरा कर लिया। अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को तुर्की के सदर की जानिब से इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स के 5वें एडिशन में शिरकत के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। कतर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक्स वर्क्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदर मुंतखब कर लिया गया है। कुवैत में जारी करदा एक अमीरी हुक्मनामे की रूह से शेख अहमद नवाफ सुबाह को मुल्क का नया वजीर आजम नामजद किया गया है। मकबूजा फलस्तीनी शहर नाबलुस पर इसराइल की जारहियत में 2 फलस्तीनी शहरी शहीद और दीगर 20 जख्मी हो गए, जबकि इसराइली जेलों में कैद फलस्तीनियों ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविनीन इंतखाब आलम और मोहम्मद शकीब को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।